Okay, today we are going to discuss a new topic. That is the name of topic, that is neurohumoral transmission. Neurohumoral transmission. Actually, neurohumoral. If you define neurohumoral transmission, so neurohumoral transmission implies that nerve transmits their message across the synapse and neuroeffector junction by the release of chemical messenger. So if you want to understand this thing, neurohumoral transmission in simple word, so we can call as it is a communication between the two neurons with the help of some chemical messenger के न्यूरोहिमोरल ट्रांसमिशन को सिंपल वर्ड में अगर हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम लोग इन सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं वेन communication between the two neurons with the help of some chemical messenger. Normally what will happen if we need to convey our message, तो we यूटिलाइज सर्टन टाइप ऑफ लैंग्वेज कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, तो विद द हेल्प ऑफ सर्टन लैंग्वेजेस कुछ लैंग्वेजेस यूटिलाइज करते हैं, दैट लैंग्वेजेस एक्चुअली ट्रांसफर्स आवर मैसेज टू द other person. So similarly in our body, n number of neuron is there, that number of neuron will communicate with each other. कि नॉर्मली क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर, कि जब भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है, वो केमिकल पोस्ट गैंग्लियन वर्क करता है एंड देन दे कन्वे देयर मैसेज. तो सिंपल वर्ड में हम लोग इसको कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, कि जब भी दो न्यूरॉन के बीच में का कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोल सकते हैं न्यूरोहीमोरल ट्रांसमिशन. ओके, सो सी दिस आर द टू न्यूरॉन्स इज देयर. देखो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं ये इमेज में कि first neuron is pre-ganglionic fiber and second is post-ganglionic. So what will happen? Pre-ganglionic fiber releases some neurotransmitter, and that neurotransmitter will can then overcome that post-ganglionic fiber, and then some certain type of activities there. So that type of message, that type of convey, that type of communication we can simply consider as a neurohumoral transmission. So let me discuss some before going to start steps involved in neurohumoral transmission. Let me discuss some criteria which is essential for neurohumoral transmission. So it should be present in presynaptic neurons, कि जो भी है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है वो it should be present in the presynaptic neurons. It should be released in the medium following the nerve stimulation, कि जब it should be released in the medium following in the nerve stimulation. Third one is it is application should produce responsiveness identical to those produced by nerve stimulation. And last one, it is its effect should be antagonized or potentiated by the other substance which is similarly alter effect of nerve stimulation. Okay, so these are some criteria which will fulfill by the neurohumoral transmission. So let me discuss one by one which are the steps involved in the neurohumoral transmission. So first one is axonal conduction, or we can call as the impulse conduction. Okay, so how exactly impulse is conducted, कि जनरली impulse conduction कैसे होता है हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है उसका फर्स्ट स्टेप है इम्पल्स कंडक्शन. ओके, सो इम्पल्स कंडक्शन है, इफ़ यू सी दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो 70 मिली वोल्ट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है. सो व्हाट विल हैपन वेन एवर एनी स्टिमुलेशन इज देयर, जब भी कोई स्टिमुलेशन होता है, सो व्हाट विल हैपन इन ओपन दी सोडियम चैनल, उससे क्या होता है इट ओपन दी सोडियम चैनल एंड लॉट ऑफ सोडियम कमिंग इनसाइड ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. जब भी एनी स्टिमुलेशन इज है, सपोज आई एम प्रिकिंग पिन इन माई स्किन, कि अगर कोई पिन प्रिक कर रहा है स्किन में, सो व्हाट विल हैपन विच ओपन दी pressure operated sodium channel. So whenever the opening of sodium channel which lead to lot of sodium come inside of your cell membrane, and जब भी सोडियम सेल के अंदर आते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है. सो पॉजिटिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, दैट लीड टू डीपोलराइजेशन. ओके, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, पोटेशियम चैनल इज गेट ओपन. पोटेशियम चैनल उसके बाद सर्टन पॉइंट के बाद क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होता है, पोटेशियम इज मूविंग आउट, तो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अगेन इज डिक्रीजेस.
but after the some time, at the same time calcium channel is open and lot of calcium is inside of your cell membrane, which lead to increase the positivity of your cell membrane. So that is plateau phase. Okay, and what will happen that after some time sodium channel is get closed, potassium calcium channel is get closed, and potassium channel is open, but potassium is moving out. So whenever potassium is moving out, which lead to increase the negativity of the cell membrane. नॉर्मली क्या होता है, हाउ इम्पल्स कंडक्ट है, इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है कि आपका जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता है, योर रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल इज -70 मिली वोल्ट. ओके, सो नॉर्मली व्हाट विल हैपन वेन एवर एनी प्रेशर इज जनरेटेड, जब भी एक प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होता है और लॉट ऑफ सोडियम इज कमिंग योर सेल मेम्ब्रेन विच लीड टू इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. एंड जब भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सेल में बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन. लेकिन अगर जब पोटेशियम चैनल ऊपर होता है और पोटेशियम चैनल इज मूविंग आउट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन विच लीड टू इंक्रीज द नेगेटिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो this lead to repolarization. So series of repolarization that become an action potential. Action potential क्या होता है कि series of depolarization और series of repolarization it will become as a action potential. So ड्यू टू दिस थिंग योर इम्पल्स गेट कंडक्टेड, कि इसकी वजह से आपका क्या इम्पल्स कंडक्शन होता है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन. देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि some channel is there, action potential how is generated, we already discussed that. How action potential is generated, so action potential we already discussed that it is a series of depolarization which is followed by series of repolarization. That thing we can consider as action potential. So after the action potential your impulse conduction is there or impulse generation is there. So in this way we can explain the impulse conduction. Now next point is this transmitter release. After the impulse conduction what will happen is there transmitter is there. Transmitter we can call as a chemical messenger. Transmitter को हम लोग बोल सकते हैं that is a chemical messenger. How this messenger is released? So transmitter, how it releases in our body. Normally this transmitter is released by the process of प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की हेल्प से आपका ट्रांसमीटर रिलीज होता है. नॉर्मली हाउ इट विल बी रिलीजेड, एक्चुअली वट एवर द ट्रांसमीटर इज देयर, ट्रांसमीटर इज नॉर्मली स्टोर्ड इन योर वेसिकल, पर्टिकुलर वेसिकल में एक ट्रांसमीटर होता है एंड दैट रिलीजेज. सो नॉर्मली दैट वेसिकल इज स्टोर्ड इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. तो हाउ दिस ट्रांसमीटर इज रिलीजेज, कि नॉर्मली ये ट्रांसमीटर कैसे रिलीज होता है, with the help of fusion of two protein. Okay, normally one type of protein is present on vesicle or membrane, one type of protein is present on cell membrane. So that two membranes fuse together. Okay, जो दोनों प्रोटीन होते हैं, जो दोनों को मेम्ब्रेन होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एंड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ दिस थिंग इंटरनल वट एवर द वेसिकल इज देयर, वेसिकल कंटेंट इज देयर विच विल रिलीजेस आउट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. Okay, normally सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन टू टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन दिस बोथ सरफेस, के दोनों की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि एक्सोसाइट वेन एवर द फ्यूजन ऑफ टू प्रोटीन, के जब भी दो प्रोटीन का फ्यूजन होता है, दोनों प्रोटीन एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ दिस प्रोटीन व्हाट विल हैपन, इंटरनल मटेरियल ऑफ दैट वेसिकल्स इज कमिंग आउट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. दैट थिंग वी कैन कॉल एज ए एक्सोसाइटोसिस. तो एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से जो न्यूरोट्रांसमीटर और जो भी ट्रांसमीटर वो रिलीज होता है, ट्रांसमीटर इट विल बी स्टोर्ड इन पर्टिकुलर वेसिकल, के जो ट्रांसमीटर होता है वो पर्टिकुलर वेसिकल में स्टोर्ड होता है. एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटिस, द इंटरनल मटेरियल इज कमिंग आउट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. सो इन दिस वे वी कैन कॉल एज ए ट्रांसमीटर रिलीज इज देयर. जो ट्रांसमीटर होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में आता है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, transmitter release. After the transmitter release what will happen, neurotransmitter release is there. This transmitter in this way, transmitter how releases with the help of exocytosis process. Now this transmitter will act on particular receptor. This transmitter act on post junctional
सेल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, कि जब ट्रांसमीटर रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद वो जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन होता है, दैट मेम्ब्रेन वी कैन, दैट न्यूरॉन वी कैन कॉल एज ए पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन। तो ये जो ट्रांसमीटर है रिलीज होने के बाद पोस्ट जंक्शनल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और शो सम सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी। जनरली ट्रांसमीटर जो भी होता है नॉर्मली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. It will be induces two type of activity: excitatory postsynaptic potential or inhibitory postsynaptic potential. Now let me discuss what is excitatory, what is inhibitory. So normally whatever the transmitter is there, it may be acetylcholine, it may be norepinephrine, it may be dopamine, it may be n number of transmitter is there in a number of chemical messenger in your body. Whenever it will be releases, it will act on particular membrane, it will act on particular neuron. And what are the activity? So certain activity is there, certain action is there. So which type of action? दो two types के action is there. So हम लोगों ने देखा है कि जब भी ट्रांसमीटर रिलीज होता है तो दो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फर्स्ट वन इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और सेकंड वन इज इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. सो व्हाट डू यू मीन बाय दीज टू, कि इसका मतलब क्या होता है? सो एक्साइटेटरी मतलब अगर आपका ट्रांसमीटर एक्साइटेटरी एक्शन कर रहा है तो क्या होता है बॉडी में चेंजेस. तो एक्साइटेटरी क्या होता है कि दीज नॉर्मली इंक्रीज द परमिएबिलिटी. जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिकल जो पोटेंशियल्स होते हैं, दैट नॉर्मली जो एक्साइटेशन करते हैं आपकी बॉडी में, जो ट्रांसमीटर एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिंपली ओपन और इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ कटायन. कि वो क्या करते हैं? कटायन मीन्स व्हाट? दोज आयन विच हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. कि जो आयन्स उसके पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो उनको उसको कटायन बोलते हैं. तो नॉर्मली एक्साइटेटरी जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो क्या करते हैं? वो ओपन दी चैनल ऑफ कटायन. वो चैनल परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं कटायन की. तो कटायन की परमेबिलिटी इंक्रीज होंगी तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटीज इंक्रीज इन योर सेल मेम्ब्रेन. जब भी कटायन की परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है? पॉजिटिविटी सेल मेम्ब्रेन की इंक्रीज होती है. और जब भी सेल की मेम्ब्रेन की पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो सेल में क्या होता है? डीपोलराइजेशन होता है और सेल एक्साइट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. गॉट इट. तो एक्साइटेशन कैसे होता है कि नॉर्मली ये जो ट्रांसमीटर है ना, दिस ट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ cations और increase the permeability of cation. So if cation permeability is increases, so what will happen? Lot of positive ion is increased in your cell membrane. Or whenever the positive ion increase of any cell membrane which lead to depolarization, and if depolarization is there which lead to contraction or stimulation. Okay, so in this way we can explain the excitatory postsynaptic potential. Now let me explain the inhibitory postsynaptic potential. So inhibitory means what? This messenger is normally responsible for opening of anions or increase the permeability of anions. अनायन इज व्हाट? दोज आयन विच हैविंग द निगेटिव चार्ज. के अनायन का मतलब क्या होता है? कि ऐसे आयन जिसमें निगेटिव चार्ज होते हैं तो उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो कम करते हैं ये केमिकल मैसेंजर. और परमिएबिलिटी इंक्रीज होंगी तो क्या होंगे? लॉट्स ऑफ निगेटिव आयन इज इंक्रीज. फॉर एग्जांपल क्लोराइड चैनल, कि अगर क्लोराइड चैनल ओपन हुआ तो क्लोराइड आपके सेल मेम्ब्रेन में इंक्रीज होंगे. और जब भी क्लोराइड इंक्रीज होता है तो निगेटिविटी बढ़ती है. वेन एवर निगेटिविटी इज इंक्रीजेज इन योर सेल मेम्ब्रेन विच लीड टू रिपोलराइजेशन. और जब भी रिपोलराइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? दैट योर सेल बिकम रिलैक्स और रिलैक्सेशन इज देयर. ओके, तो इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? कि कुछ केमिकल मैसेंजर इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं. इनहिबिटरी एक्शन मीन्स व्हाट? सिंपली दिस मैसेंजर विल ओपन दी निगेटिव आयंस, will open the anion channel, will increase the permeability of anions. If permeability of anion is increases, कि अगर anion की permeability increase होती है तो उसका मतलब क्या होगा? कि आपके बॉडी में निगेटिविटी बढ़ेंगी. और इफ निगेटिविटी इज इंक्रीज इन योर सेम मेम्ब्रेन विच लीड टू रीपोलराइजेशन. एंड इफ रीपोलराइजेशन इज देयर, अगर रीपोलराइजेशन आपका सेल में होगा तो इसका मतलब क्या होता है? आपका सेल रिलैक्स हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दी पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी
इस तरह से जब भी ट्रांसमीटर इज रिलीज, बॉडी में जब भी ट्रांसमीटर का रिलीज होता है तो आपके पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन पे वर्क करता है। वर्क करने के बाद टू टाइप ऑफ एक्टिविटी शो करता है। एक है एक्साइटेटरी एक्टिविटी होती है और एक इनिबिटरी एक्टिविटी है। एक्साइटेटरी कब होता है कि जब आपके कटायन चैनल ओपन होते हैं और पॉजिटिविटी सेल में बढ़ती है, तब एक्साइटेशन होता है। और जब इनिबिटरी एक्टिविटी कब होती है, जब आनायन चैनल्स ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड हो गया, नेगेटिव आयन नेगेटिविटी सेल में बढ़ती है तो सेल रीपोलराइज होता है और रिलैक्स होता है। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दिस टू टाइप ऑफ एक्टिविटी। आपकी इस तरह से दो टाइप की एक्टिविटी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्साइटेटरी और दूसरी इनिबिटरी, ये पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी होती है। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज विच टाइप ऑफ पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी इज देयर। तो कौन सी पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी होती है हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली आफ्टर दिस एक्साइटेशन और इनिबिशन which result into after the action potential which result in nerve impulses that contraction। इसकी वजह से क्या होता है, इस टाइप की एक्टिविटी होने की वजह से एक्साइटेशन और रिलैक्सेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, सिक्रीशन होता है ग्लैंड का, एंड देन वेरियस थिंग इज टेक्स प्लेस। जैसे पोस्ट जंक्शनल इस टाइप की एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। नाउ लास्ट वन, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसमीटर। आप वंस मैसेंजर शोज देयर एक्टिविटी, जो भी केमिकल मैसेंजर है उसकी एक्टिविटी होने के बाद, फॉर एग्जांपल एसिटिलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, सो व्हाट विल हैपन, दे आर मेटाबोलाइज, दे आर कैटाबोलाइज विद द हेल्प ऑफ सर्टन टाइप ऑफ एंजाइम। कि उनकी एक्टिविटी होने के बाद एक तो रीस्टोर रहते हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन किसको कहते हैं, दैट कंपाउंड विच हैविंग दी कैटाकोल ओ रिंग, कैटाकोलामाइन। तो दैट कंटेन बेंजीन रिंग और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, so that thing become as a catecholamine. For example epinephrine, norepinephrine, dopamine, these thing we can call as a catecholamine. तो ये जब रिलीज होते हैं तो रिलीज होने के बाद 80% ऑफ कैटाकोलामाइन इज रिस्टोर इन योर वेसिकल। 80% कैटाकोलामाइन आपके वेसिकल में रिस्टोर हो जाते हैं। 20% जो कैटाकोलामाइन इट इज बाय मेटाबोलाइज बाय with the help of certain type of enzyme. That enzyme is MAO is there, catechol O methyl transfer is there, monoamino oxidase is there. With the help of this enzyme is responsible for metabolism of catecholamine. For example epinephrine, norepinephrine. Then acetylcholine is there. So certain enzyme is there, certain enzyme is in your body which will metabolize or catabolize this type of transmitter. Okay, once transmitter is released, ट्रांसमीटर क्या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या होता है कि इट शो सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटी इन योर बॉडी। वंस देयर एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, दे मोस्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, दे केमिकल मैसेंजर इज रिस्टोर बैक और सम पार्ट इट इज मेटाबोलाइज और कैटाबोलाइज सर्टन टाइप ऑफ एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस दैट इज इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, दिस टाइप ऑफ मैसेंजर वी कैन कॉल एज ए कैटाकोलामाइन, एंड दिस कैटाकोलामाइन is normally 80% of कैटाकोलामाइन is restored back in vesicle and 20% is metabolized certain type of enzyme. For example, monoamino oxidase is there, catecholamin is there. So this type of enzyme is responsible for metabolism and catabolism of your this transmitter. Okay, so in this way we explain the neurohumoral transmission or step involved in neurohumoral transmission. We discuss simply neurohumoral transmission, that is communication between the two neurons. कि जब भी दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन होता है with the help of certain chemical messenger, this type of thing we can simply explain that the न्यूरोहिमोरल ट्रांसमिशन। उसमें हम लोगों ने स्टेप डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, एक्शन पोटेंशियल के बाद होता है। और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया कि सीरीज ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय सीरीज ऑफ रीपोलराइजेशन, दैट थिंग बिकम एज ए एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसमीटर रिलीज होता है। ट्रांसमीटर कैसे रिलीज होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है हम लोगों ने सिंपली डिफाइन किया है कि इट इज़ ए फ्यूजन ऑफ टू प्रोटीन। जब भी दो प्रोटीन का फ्यूजन होता है, विद द फ्यूजन होने के बाद इंटरनल मटेरियल सेल के बाहर आते हैं, दैट थिंग बिकम एज ए एक्सोसाइटोसिस। देन वी डिस्कस द transmitter action on post junctional activity. Two type of activities there. First one is the excitatory
एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, सेकंड वन इज इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अनायंस कटायंस के चैनल ओपन हो जाते हैं, पॉजिटिविटी सेल के अंदर बढ़ती है और जिससे डीपोलराइजेशन होता है। इनिबिटरी में क्या होता है, अनायंस चैनल ओपन होते हैं और निगेटिविटी सेल के अंदर इंक्रीज होती है जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन होता है। So in this way we discuss these various things in inhibitory or excitatory action, and then we discuss destruction of the transmitter के exactly transmitter का destruction कैसे होता है, termination of that transmitter action we discuss के कितने परसेंट में रिस्टोर होता है, कौन से कटायन ट्रांसमीटर रिस्टोर होते हैं और कौन से कैसे मेटाबोलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम और आइसोएंजाइम। Okay, so in this way we discuss the neurohumoral transmission.